Good morning, future chartered accountants. So today we are here with our demo lecture number 3, wherein we will try to cover inherent limitations of audit and remaining topics of chapter number 1. So our in the last lecture, what we have covered is the scope of audit, right? So we have learned what comprises, what forms the scope of audit, right? So let me just start right away with what we have discussed in the last lecture, and then try to bring in new concept relating to inherent limitations of audit. So let us start and trying to revise what we have done in the what we have covered in the last lecture, and then we can jump onto this, right? So allow me 1 second, 1 second. Let me just adjust the screen once. Yeah, so that's fine, right? So what we have learned in the last recording or session was basically scope of audit, जहाँ पे हमने ये समझा scope audit covers all the aspects of an entity which are relevant to the financial statements, right? यहाँ पे हमने एग्जांपल पढ़ा कि पेरोल की जो बंदा ऑडिट कर रहा है उसको जॉइनर्स की प्रोसेस समझना, जॉइनर्स की प्रोसेस में बैकग्राउंड चेक को समझना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द पर्पस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट. बस क्या उसने ट्रेनिंग करी है या नहीं करी है, दैट इज नॉट रेलेवेंट टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, बट रादर इट्स अ ऑपरेशनल एस्पेक्ट. तो हमने पढ़ा कि audit covers all the aspect of an entity which are relevant to the financial statement, which are relevant to the financial statement. तो मैंने बोला scope of audit is to cover all the aspects of an entity which are relevant to the financial statements. ठीक है, फिर हमने बोला reliability and sufficiency of financial information. तो financial information किसके बनती है? underlying records के. तो हमने बोला जो underlying records है that should be reliable as well as sufficient for the auditor to express an audit opinion thereon. The auditor should be reasonably satisfied that the information contained in the underlying accounting records and other source data like bills, voucher, purchase order is reliable and sufficient basis for the preparation of the financial statement. The auditor should be reasonably satisfied what? He should be reasonably satisfied कि जो underlying accounting data है and underlying records है that is reliable as well as sufficient for the preparation of the financial statement. तो मैंने क्या बोला? The auditor should be reasonably satisfied that the underlying accounting records and source data is sufficient and reliable for the purpose of preparation of the financial statement. इसको अगर इसको ये assure करना है that the financial information that the information that is underlying the financial statement is sufficient and reliable, so the auditor makes a judgment of reliability and sufficiency of the financial statement by making a study and evaluation. Study and evaluation किसका करेगा? वो accounting system का, इंटरनल कंट्रोल्स का, एंड कैरिंग आउट अप्रोप्रिएट टेस्ट, इंक्वायरीज एंड प्रोसीजर्स. तो मैं आपको समरी में समझाता हूं. स्कोप ऑफ ऑडिट, इट कवर ऑल द एस्पेक्ट्स ऑफ एन एंटिटी व्हिच आर रेलेवेंट टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, राइट? देन हमने बोला द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर प्रिपेयर्ड बेस्ड ऑन द अंडरलाइंग डेटा एंड रिकॉर्ड्स एंड द ऑडिटर शुड बी reasonably satisfied that the information contained in the accounting records is reliable and sufficient, right? उसको ये पता होना चाहिए it is reliable and sufficient. अभी the auditors make a judgment of reliability and sufficiency of the financial statement. वो उसके लिए क्या करेगा? वो study करेगा what is the system of accounting followed in the entity, right? Then he will study the system of internal controls. Then he will carrying out the test कि जो क्या accounting system है और क्या controls है, whether these are operating effectively, मतलब जो कंट्रोल लगाए क्या वो चल रहे हैं, और वो टेस्ट करेगा कि जो अकाउंटिंग सिस्टम से जो डेटा आ रहा है दैट इज करेक्ट. ठीक है, तो कैरिंग आउट अप्रोप्रिएट टेस्ट, इंक्वायरीज एंड प्रोसीजर्स. ठीक है, तो बेसिकली इससे वो इंश्योर करेगा that the information underlying the accounting records is reliable and sufficient for the purpose of expressing an opinion on the financial statement. ठीक है, फिर हमने पढ़ा proper disclosure of the financial information is also covered within the scope of the audit. तो इसमें हमने क्या बोला? Basically all the relevant information should be properly disclosed. तो relevant information क्या हो सकती है? तो मैंने बोला कुछ भी हो सकती है. ठीक है, तो relevant information means let's suppose एक कंपनी में आग लग गई. ठीक है, तो क्या ये relevant information है? हाँ, ये relevant information है. This should be disclosed in the notes to account. अगर आग इतनी substantial है,
कि कंपनी के बिजनेस को इम्पैक्ट हुआ है, राइट? तो रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन शुड बी प्रॉपर्ली डिस्क्लोज इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ऑल्सो जो एप्लीकेबल लॉ है, एप्लीकेबल स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट है, उसको उसके हिसाब से भी जो डिस्क्लोजर होना चाहिए वो भी होना चाहिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। तो हमने इसमें एग्जांपल पढ़ा था शेड्यूल 3 डिवीजन 1 का, जहां पे बेसिकली बहुत सारी अकाउंटिंग डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट थी, तो दैट शुड हैव बीन सफिशिएंटली कंप्लाइड विद। फिर हमने बोला मैनेजमेंट जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाता है तो वो जजमेंट्स यूज करता है, ठीक है? तो ये जजमेंट्स अप्रोप्रिएटली डिस्क्लोज्ड होनी चाहिए इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। इट इज डन बाय एंश्योर हाउ द प्रॉपर डिस्क्लोजर ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन इज एंश्योर्ड। इट इज डन बाय एंश्योरिंग दैट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रॉपर्ली समराइज ट्रांजैक्शन एंड इवेंट्स recorded therein and by considering the judgments made by the management in the preparation of the financial statement। तो जो judgments management ने लिए वो properly disclose होनी चाहिए। इसके लिए हमने क्या किया था, हमने यूफ्लेक्स की बैलेंस शीट देखी थी, हमने उसमें देखा था जजमेंट्स के ऊपर जो नोट था, राइट? फिर हमने क्या बोला, द ऑडिटर्स इवैल्यूएट द सिलेक्शन एंड कंसिस्टेंट एप्लीकेशन ऑफ एन अकाउंटिंग पॉलिसी। अब इसमें हमने एग्जांपल लिया था AS2 बोलता है फीफो भी ले सकते हो, वेटेड एवरेज भी ले सकते हो, राइट? लेकिन हम मतलब एंटिटी के पास एक लॉजिक होना चाहिए, व्हाई फीफो इज बेटर एंड व्हाई वेटेड एवरेज इज बेटर, ठीक है? तो वेदर सच अ सिलेक्शन इज प्रॉपर, मतलब क्या ये सिलेक्शन ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी इज करेक्ट एंड वेदर सच पॉलिसी हैज बीन अप्लाइड कंसिस्टेंटली ऑन अ पीरियोडिकल बेसिस। तो अकाउंटिंग पॉलिसी, अगर आपको पता हो, अकाउंटिंग पॉलिसी शुड बी अप्लाइड कंसिस्टेंटली ओवर अ पीरियड ऑफ पीरियड। अगर कुछ अकाउंटिंग पॉलिसी में चेंज होता है तो वो रेट्रोस्पेक्टिव अप्लाई होता है। मतलब ये बोला जाता है कि अगर ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट शुरू से अगर इसी अकाउंटिंग पॉलिसी के हिसाब से बनाए गए होते तो क्या इंपैक्ट होता। तो अकाउंटिंग पॉलिसी का जो चेंज होता है, अगर कंपनी कभी भी जाके आगे जाके अकाउंटिंग पॉलिसी को चेंज करती है तो उसका इंपैक्ट रेट्रोस्पेक्टिव होता है और ओपनिंग जो इक्विटी बैलेंस होता है ना वो चेंज हो जाता है, ठीक है? तो ये आपको शायद अकाउंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से रेलेवेंट है, बट लेट मी ट्राई टू समराइज इट। let me try to put it in my way। basically scope of audit, ठीक है? स्कोप ऑफ ऑडिट क्या होता है? तो स्कोप ऑफ ऑडिट हमने पढ़ा, इट शुड कवर ऑल द एस्पेक्ट relevant to the financial statement। फिर हमने बोला इट शुड ensure that the financial information is reliable and sufficient। अभी वो कैसे करेगा? अभी वो इसके लिए क्या करेगा, अकाउंटिंग सिस्टम को अंडरस्टैंड करेगा, अकाउंटिंग सिस्टम को समझेगा, इंटरनल कंट्रोल्स को समझेगा, फिर उनको टेस्ट करेगा, ठीक है? टेस्ट करेगा, इंक्वायरी करेगा और प्रोसीजर्स परफॉर्म करेगा। मैनेजमेंट से पूछ भी तो सकता है कि भाई तुम्हारा ये सिस्टम कैसे चलता है, ठीक है? फिर उसको ये इंश्योर करना है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में प्रॉपर डिस्क्लोजर हो रखा हो। प्रॉपर डिस्क्लोजर वो कैसे इंश्योर करेगा? वो बेसिकली ये देखेगा कि ऑल द रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन हैज बीन डिस्क्लोज, जितनी भी रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन है वो डिस्क्लोज हुई है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। दूसरा वो क्या चलेगा, वो देखेगा जितनी भी जजमेंट्स यूज हुई है दैट हैज बीन अप्रोप्रिएटली डिस्क्लोज इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड द company has properly selected given the choice of the accounting policy the company had to evaluate the selection and consistent application of the accounting policies and will check that the accounting policies have been applied on a consistent basis on a period basis, ठीक है? तो ये हमने पढ़ा स्कोप ऑफ ऑडिट के बारे में, राइट? So let me take a pause here and we will again summarize it। What we have learned again is basically that yes, coverage, what does this scope of audit covers? It should cover all the aspect of an entity that are relevant to the financial statement. It should ensure that the underlying financial information that has been underlying records and documents that have been considered in the preparation of the financial statement are sufficient and reliable for the auditor's purpose। He should be reasonably satisfied that the underlying financial records used in the preparation of the financial statement are reliable and sufficient। उसके लिए वो क्या करेगा? उसके लिए he will evaluate the accounting system, he will evaluate the internal controls and he will perform appropriate procedures, appropriate test, appropriate inquiries। So he will carry out the appropriate test, inquiries and other procedures। What is also covered in the scope of audit is the proper disclosure of the financial statement, which state that all the relevant information should be disclosed in the notes to accounts। It also says that all the statutory requires disclosures like Schedule 3 Division 1 should also be given consideration by the auditor when ensuring that the financial statement discloses the appropriate thing, right? Then the importance should also be given that the management judgment have been appropriately disclosed in the financial statements। Then what should else be considered is basically that the selection and application of accounting policies by the management is consistent and the
company does not changes its accounting policy and it applies it on a period basis. ठीक है, तो इसमें हमने AS2 का एग्जांपल लिया, इन्वेंटरी फीफो या वेटेड एवरेज. अकाउंटिंग पॉलिसी चॉइस बाय एन एंटिटी should be based on the facts of the entity, right? It should be a proper choice, right? Whether such a selection is proper, auditor needs to evaluate that the accounting policy choice is proper by the entity. तो अब हमने पढ़ा, it cover all the aspect of an entity that are relevant to the financial statement. Auditor needs to ensure the reliability and sufficiency of the financial information. He need to ensure that the proper disclosures are there in the financial statement. He also have a responsibility to express an opinion on the financial statement, but he does not have any responsibility to prepare the financial statement. So the preparation and presentation of the financial statement is the responsibility of the management of an entity, but he is responsible for the proper disclosures in the financial statement. So financial statements को बनाना और उसको presentation देना, it is the responsibility of the management, but the proper disclosure वो ensure करना is the responsibility of the ऑडिटर. तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को बनाना मेरी जिम्मेदारी नहीं है, लेकिन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर डिस्क्लोजर आ रहे हैं, प्रॉपर डिस्क्लोजर्स आ रहे हैं, इसे चेक करना मेरी जिम्मेदारी है. ठीक है, तो ये मेरा ड्यूटी एज ए ऑडिटर हुआ. ठीक है, फिर मैंने बोला मेरी ड्यूटी ये भी नहीं है कि मैं सच एज बेसिकली डिटरमाइनिंग द लाइफ ऑफ अ बिल्डिंग, ये मेरा स्पेशलाइजेशन नहीं है. इट शुड बी डन बाय ए सिविल इंजीनियर, राइट? तो ड्यूटीज आर समटाइम आउटसाइड द स्कोप ऑफ ऑडिटर, लाइक डिटरमाइनिंग द यूजफुल लाइफ ऑफ बिल्डिंग. तो ये मेरा काम नहीं है. आई एम नॉट एन एक्सपर्ट इन ऑथेंटिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट. मतलब मुझे रीजनेबल स्किल्स देखनी है कि भाई मेरे पास जो एग्रीमेंट आ रहा है, दैट इज साइन, दैट इज एग्जीक्यूटेड, उसमें डेट आ रही हो, किस दिन साइन हुआ है, बट आई एम नॉट एक्सपर्ट इन ऑथेंटिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट. अब पता चले किसी ने सिर्फ सिग्नेचर की स्निप डाल के उसका प्रिंट ले लिया और मुझे दे दिया कि ये साइन डॉक्यूमेंट है, राइट? जबकि वो डॉक्यूमेंट कभी साइन ही नहीं हुआ. तो आई हैव अ रिस्पॉन्सिबिलिटी दैट आई चेक दैट द डॉक्यूमेंट इज साइंड, it is dated, it is properly signed by both the parties, right? लेकिन ये नहीं है कि basically I am not an expert in the authentication of documents. तो मतलब ये नहीं होगा कि मैं उस फर्जी साइन को पहचान पाऊंगा. It is out of my competence, right? Then it's not an investigation. Investigation क्या होता है? It's a critical examination. ठीक है, investigation is a critical examination of the accounts with a special purpose. Audit is not investigation. इसमें हमने रेड मूवी का एग्जांपल लिया, जहां पे बंदों से ओथ भी ली, जहां से बंदों के ऊपर सर्च एंड सीजर भी हुआ, बंदों को बाहर भी नहीं जाने दिया. ऐसी पावर्स ऑडिट में नहीं होती. इन इन्वेस्टिगेशन इज द क्रिटिकल एग्जामिनेशन ऑफ द अकाउंट्स विद अ स्पेशल पर्पस. जब रेड मूवी होती है ना, तो रात को जब ऑफिसर आता है तो सबको बोलता है ठहर जाओ, जहां रुके हो वहीं रुक जाओ, राइट? तो दैट इज इन्वेस्टिगेशन. बट ये क्या, ऑडिट डज नॉट कवर इन्वेस्टिगेशन. ऑडिट में यू डोंट हैव पावर सिमिलर टू इन्वेस्टिगेशन. फिर अभी चलते हैं नीचे, केस स्टडीज है, 3-4 केस स्टडीज है. लेट अस रीड. ठीक है, अभी मैं आंसर नहीं पढ़ा था आपको. ठीक है, बेसिकली क्वेश्चन क्या है, Lalji Bhai has purchased shares of a company listed on NSE. The audited financial statement of the company provides picture of healthy financial performance, having robust turnover, low debt, and good profits. On the above basis, he is absolutely satisfied that the money invested by him is safe. अभी देखो financials में क्या होता है, basically उसकी अच्छी बैलेंस शीट है, टर्नओवर बढ़ रहा है, प्रॉफिट्स भी अच्छे हैं. ठीक है, मतलब सब कुछ अच्छा हो रहा है कंपनी के साथ. लेकिन अब लालजी भाई ने पैसे लगा दिए. लालजी भाई ने देखा कि बैलेंस शीट अच्छी है, प्रॉफिट अच्छा है, टर्नओवर अच्छा है, और पैसे अपने डाल दिए, ये सोच के कि पैसा सेफ है एंड देयर इज नो चांस ऑफ लूजिंग हिज मनी. ठीक है, तो अभी देखो समझो, शेयर मार्केट जो चलता है ना, वो चलता है बेसिकली एक्सपेक्टेशंस के बेसिस पे. अच्छा टर्नओवर है, अच्छी सेल्स है, अच्छा प्रॉफिट है, राइट? तो मार्केट ने जो, अब देखो डिपेंड करता है कि उसने किस प्राइस पे खरीदा है शेयर को. क्या शेयर यहां से बढ़ सकता है या नहीं बढ़ सकता, दैट डिपेंड्स ऑन द प्राइस विच ही इज परचेज. लाइक लेट सपोज एक 100 रुपए का शेयर था, जिसमें क्या हुआ, अच्छी सेल्स रिपोर्ट हुई, अच्छा प्रॉफिट रिपोर्ट हुआ, और ये शेयर इवेंचुअली 200 रुपए का चला गया. ठीक है, अब एक इन्वेस्टर सोचता है ये कंपनी ने रिपोर्ट किए अच्छे रिजल्ट्स, राइट, आई शुड बाय इट. तो अभी डिपेंड करता है कि क्या वो 200 से ऊपर की भी वर्थ रखता है. तो इट इज नथिंग टू डू विद द फाइनेंशियल पोजीशन. ठीक है, क्या पता मार्केट ने ऑलरेडी प्राइस्ड इन कर चुका हो कि वो अपने अच्छी सेल्स जो रिपोर्ट करी है. मार्केट इज द बॉस.
market is the boss. So market would already have priced into it what is the effect of the good sales, good earnings. ठीक है, तो अभी वो सोच रहा है कि पैसे उसके लूज नहीं हो सकते. Do audited results and audit report of the companies provide such assurance to the investor कि उसका पैसा कभी नीचे नहीं जाएगा? तो जवाब है नहीं नहीं नहीं. ऐसी ऐसी एश्योरेंस कभी भी ऑडिट नहीं देता. ऑडिट जो एश्योरेंस देता है वो देता है रीजनेबल एश्योरेंस. किसके ऊपर? फिनेंशियल स्टेटमेंट के ऊपर, ना कि जो शेयर्स में पैसा लगा है उसके ऊपर. तो इंपॉर्टेंट क्या है इसमें? दो चीजें इंपॉर्टेंट है. एन ऑडिट डज नॉट प्रोवाइड एश्योरेंस टू द इन्वेस्टर इन शेयर्स रिगार्डिंग द सेफ्टी ऑफ हिज मनी. ऑडिटर जो देता है वो रीजनेबल एश्योरेंस देता है किसके ऊपर? फिनेंशियल स्टेटमेंट्स के ऊपर, ना कि उसकी इन्वेस्टमेंट के ऊपर. करेक्ट. तो शेयर प्राइस ऑफ द सिक्योरिटीज आर अफेक्टेड बाय रेंज ऑफ factors. And on audit only provides reasonable assurance that the financial statement as a whole are free from material misstatement, whether due to fraud or error. Hence, thinking of Lalji Bhai is not correct. It is not correct. ठीक है, अभी चलते हैं अगला क्वेश्चन. Good Deeds Limited is engaged in the business of recycling of wastage from dumping grounds of Municipal Corporation of Indore to usable manure. It is in this way also helps to make the city clean. ठीक है. During the course of audit of by Zoha and Zoa, a firm of auditors, it is observed by the auditor that the company has received a notice from Central Bench of National Green Tribunal for not following certain environmental regulation involving imposition of hefty monetary penalty on the company. तो कंपनी पे एक नोटिस आया जिसपे बहुत तगड़ी पेनल्टी लगी है इन्वायरमेंटल लॉस के हिसाब से. ठीक है, the company is yet to reply to the notice. अभी कंपनी ने रिप्लाई नहीं दिया है. The auditors point out that the same is not stated in the notes to accounts in the financial statement. तो अभी हम रिवाइज करते हैं. प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? हमने जवाब दिया मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, राइट. लेकिन क्या उसमें डिस्क्लोजर आ रहा है? इसको चेक करना किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी? इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द ऑडिटर. तो अभी ऑडिटर ने चेक किया और देखा कि इसके बारे में नोट नहीं आ रहा, मतलब इट इज all the relevant information should be properly disclosed in the financial statement and it is a relevant information. The company points out that the auditors are going beyond the scope of their work. तो क्या ऑडिटर सही में जा रहा है? तो जवाब है नहीं. Auditor has a responsibility to ensure that all the relevant information has been appropriately disclosed in the financial statement. Does such a matter fall within the scope of audit? तो जवाब है हाँ, it falls within the scope of audit and that is covered in point number 3 which we have read about, that the proper disclosure of the financial information is within the responsibility of an auditor. It is within the scope of audit. ठीक है, अभी क्या होता है, एक फायर लग गई है नोएडा प्लांट में ऑफ केटी लिमिटेड. Plant assets comprising building, machinery and inventories were insured from branch of a public sector insurance company. तो आग लगी और जो assets थे वो इंश्योरेंस कंपनी ने इंश्योर किए थे. Apart from an insurance surveyor who was deputed for assessing loss. अभी क्या होता है, आग लगी, इंश्योरेंस कंपनी की वो कवरेज में आ गया. ठीक है, तो अब इंश्योरेंस कंपनी ने एक बंदा लगाया जिसको नाम दिया सर्वेयर. ठीक है, तो वो सर्वेयर अभी असेस कर रहा है कि कितना लॉस है. The regional office of insurance also appointed a CA for verification of the books of account or financial records of the company and circumstances surrounding the loss. तो अभी एक सीए को भी अपॉइंट किया गया ये देखने के लिए कि बुक्स ऑफ अकाउंट्स में क्या वैल्यू ऑफ एसेट्स आ रहे थे और किस वजह से ये आग लगी है. किस वजह से आग लगी है, मतलब बेसिकली कौन से ऐसे एसेट्स थे दैट वर बेसिकली यू कैन से दैट वर ससेप्टेबल टू फायर. ठीक है, he was also requested to submit an early report. Would the report by CA in the nature of audit report? अभी क्या क्वेश्चन है, क्या ये ऑडिट रिपोर्ट है? तो जवाब है नहीं, ये इन्वेस्टिगेशन की तरह रिपोर्ट है जहां पे बेसिकली इंश्योरेंस कंपनी ने एक सीए को अपॉइंट किया है जो कि बेसिकली एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को एग्जामाइन करेगा कि भाई कितने इस प्लांट में फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की वैल्यू थी. इट्स नॉट इन द नेचर ऑफ ऑडिट बट इट्स रादर इन द नेचर ऑफ एन इन्वेस्टिगेशन. इट्स अ क्रिटिकल एग्जामिनेशन of the accounting records for a special purpose. ठीक है, for a special purpose. So it's not in the appointment of CA for the verification of the books of accounts or financial record and circumstances surrounding the loss is for a specific objective to determine genuineness of loss and any issue affecting liability of insurance company. It is an investigation and not in the nature of audit. So it's का जो nature है that is in the nature of investigation. ठीक है, it's not in the nature of audit. Audit is audit अभी जैसे हमने पढ़ा, its objective is to provide reasonable assurance that the financial statements as a whole are free from material misstatement whether due to fraud or error. ठीक है, अभी चलते हैं अपन
inherent limitations of audit. Just trying to summarize, scope of audit covers all the aspects of an entity relevant to the financial statements. Appropriate disclosures of the financial information is well within the scope of the audit. ठीक है. Then we read कि the auditor should obtain sufficient, you can say, he should be sufficiently satisfied that the financial information is reliable and sufficient. उसके लिए वो क्या देखेगा? अकाउंटिंग सिस्टम्स को देखेगा, इंटरनल कंट्रोल्स को इवैल्यूएट करेगा और बेसिकली अपने टेस्ट परफॉर्म करेगा. करेक्ट, ये हमने लर्न किया. फिर हमने लालजी भाई की केस स्टडी देखी जहाँ पे वो सोच रहे कि जो उन्होंने शेयर में पैसा डाला based on the audited financial results would ensure the safety of his capital. तो जवाब है नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं ऑडिट कंफर्म करता. ऑडिट बस ये कंफर्म करता है बेसिकली, वो अश्योरेंस क्या देता है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट. फिर दूसरा चलते हैं, बेसिकली एक कंपनी के पास इन्वायरमेंटल डिपार्टमेंट का एक नोटिस आया, उन्होंने इस फैक्ट को नोट्स टू अकाउंट्स में नहीं डिस्क्लोज किया, तो क्या ये ऑडिटर के स्कोप में है या नहीं है? तो जवाब है preparation and presentation of the financial statement is not in the scope of the audit, but definitely verifying that the proper disclosure has been made in the financial statement is well within the scope of audit. तो ये इनके स्कोप में था कि बेसिकली उनको नोट्स टू अकाउंट्स में नहीं दिखाया गया and the auditor needs to caution that it should have been properly disclosed, because proper disclosure means all the relevant information for the purpose of audit, for the purpose of understanding the financial statements have been appropriately disclosed. फिर एक क्या हुआ, प्लांट में आग लगी जहां पे सीए को अपॉइंट किया गया कि आप इनकी बुक्स में देखो कितने रुपए के एसेट्स आ रहे थे, और सीए ने वो वेरीफाई करके, मतलब सीए को बेसिकली इसलिए अपॉइंट किया कि बुक्स के हिसाब से बताओ एसेट्स की क्या वैल्यू आ रही थी. तो ये इट्स नॉट एन ऑडिट बट इट्स मोर लाइक अ ड्यू डिलिजेंस और यू कैन से एन इन्वेस्टिगेशन कंडक्टेड फॉर अ स्पेशल पर्पस. ठीक है, इट इज अ क्रिटिकल एग्जामिनेशन ऑफ द अकाउंटेंट रिकॉर्ड्स फॉर अ स्पेशल पर्पस. इट हैज गॉट अ स्पेशल पर्पस, so it's not in the nature of audit but it's rather in the nature of investigation, and if I have to more particularly put it, it is more in the nature of ड्यू डिलिजेंस. ठीक है, तो बेसिकली इंश्योरेंस कंपनी ने बोला कि भाई तू चेक कर यार कि बुक्स में भी इतने वैल्यू के एसेट्स आ रहे थे या नहीं आ रहे थे. ठीक है, अभी चलते इनहेरेंट लिमिटेशंस ऑफ ऑडिट. इसको हम 3 हिस्सों में, मतलब हम इसको 5 हिस्सों में पढ़ते हैं. ठीक है, अभी मैंने क्या बोला, नेचर ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग. ठीक है, तो अभी हमने ऊपर पढ़ा था प्रॉपर डिस्क्लोजर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज विद इन द स्कोप ऑफ ऑडिट. ठीक है, अभी फाइनेंस डिस्क्लोजर्स में क्या होना चाहिए, जितनी भी मैनेजमेंट जजमेंट्स है, तो इसमें हमने लास्ट क्लास में यूफ्लेक्स की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स देखे थे, राइट. तो हमने ये देखना था कि जितनी भी रेलेवेंट जजमेंट्स हैं वो मैनेजमेंट यूजेस जजमेंट इन द प्रिपरेशन ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट. ऑब्वियस सी बात है, मैनेजमेंट ने जज किया कि लेट सपोज ये लायबिलिटी नहीं आएगी और प्रोविजन नहीं बनाया. लास्ट ईयर ऑडिट में ये हुआ, तो मैनेजमेंट ने जजमेंट की कि मेरे पे ये लायबिलिटी नहीं आएगी और प्रोविजन नहीं बनाया, लेकिन एक्चुअल में क्या हुआ कि वो लायबिलिटी आ गई, तो इस साल प्रॉफिटेबिलिटी में हिट आ गया. ठीक है, तो अभी प्रिपरेशन ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट इन्वॉल्व्स मेकिंग मेनी जजमेंट्स बाय द मैनेजमेंट. दीज जजमेंट्स में इन्वॉल्व सब्जेक्टिव डिसीजन और अ डिग्री ऑफ अनसर्टेनिटी. इसलिए ऑडिट माइट नॉट बी गुड इनफ टू डिटेक्ट all the misstatements from the financial statement. तो अभी financial statements को बनाने में मैनेजमेंट बहुत सारी जजमेंट यूज करता है. अब पता चले उस जजमेंट में मैनेजमेंट का बायस छुपा हो. ठीक है, तो जजमेंट्स को आप कभी भी 100% ऑडिट नहीं कर सकते. जजमेंट क्या होगा कि मुझे लगता है ये केस में नहीं आएगी लायबिलिटी. ठीक है, तो उस समय वो सिचुएशन, ऑल्दो कुछ भी चेंज नहीं हुआ सिचुएशन में, लेकिन नेक्स्ट ईयर में जाके वो लायबिलिटी आ गई, कुछ भी नया कुछ नहीं हुआ, केस वही था, सब कुछ वही था. तो कायदे से तो ये लास्ट ईयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट में चल जानी चाहिए थी लायबिलिटी, लेकिन लास्ट ईयर नहीं जा पाई. तो मतलब देयर आर सम लिमिटेशंस ऑफ ऑडिट एंड वन ऑफ देम इज नेचर ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग. फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का नेचर ही ऐसा है कि मैनेजमेंट को जजमेंट करनी पड़ती है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को बनाने के लिए. ठीक है, और जजमेंट इज ऑलवेज सब्जेक्टिव. ठीक है, एंड इट इज ऑलवेज अनसर्टन. तो दिस वुड रिजल्ट इन बेसिकली this might result in a material misstatement of the financial statement which an auditor may have failed to detect when he was performing an audit. तो inherent limitations of audit means भले ही ऑडिट अच्छे तरीके से हुआ हो तब भी ऑडिटर शायद गलतियां ना पकड़ पाए, क्योंकि ये प्रॉब्लम, मतलब ये जो लिमिटेशंस है ना ऑडिट की, ये दिस ऑलवेज एग्जिस्ट. ठीक है, अभी फिर दूसरी सबसे बड़ी लिमिटेशन क्या है, तो अभी मैनेजमेंट एक्नॉलेजेस इट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द प्रिपरेशन ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट इन अकॉर्डेंस विद द एप्लीकेबल एफआरएफ
and for devising suitable internal control. So management is responsible for the preparation of the financial statement along with the establishment of the controls, right? However, such controls may not have operated to produce reliable financial information due to their own limitations. अभी क्या हुआ, लेट सपोज, अभी मैंने आपको ना लास्ट क्लास में बोला था कि मैं आपको रिस्क और कंट्रोल की मैपिंग समझाऊंगा, ठीक है? तो देखो प्रैक्टिकल लाइफ में अभी चलते हैं अपन, लेट सपोज सबसे पहले ना लाइफ में मैं बता दूं आपको, आप मान लो एक आर्टिकल असिस्टेंट हो, आप ऑडिट पे गए, ठीक है? आपको बोला कि आपको पेरोल एक्सपेंस का ऑडिट करना है, ठीक है? आपको बोला पेरोल एक्सपेंस का ऑडिट करना है, ठीक है? अभी अभी मैंने क्या बोला, आपके अजर्शन, अभी आपके सामने मैं पहला वर्ड ला रहा हूं, दैट इज अजर्शन। अजर्शन मींस, अजर्शन का क्या मतलब होता है, ठीक है? अभी मैं अजर्शन आपको समझाता हूँ। अभी चलते हैं यूफ्लेक्स की ऑडिट रिपोर्ट में, ठीक है? यूफ्लेक्स लिमिटेड फिनेंशियल्स, ठीक है? फिनेंशियल्स पे चलते हैं, एनुअल रिपोर्ट्स पे चलते हैं। अजर्शन क्या होती है, अजर्शन क्या होती है, मैं आपको पढ़ के समझाता हूँ, ठीक है? अजर्शन क्या होती है? अजर्शन मींस कुछ ऐसी चीजें जो मैनेजमेंट इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट के थ्रू बोलना चाह रहा है, ठीक है? तो एक काम करते हैं, पीपी पे चलते हैं, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। आप लोगों ने समझा होगा प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में डेप्रिसिएशन लगता है, राइट? अब अजर्शन क्या है, मैनेजमेंट क्या बोल रहा है, ठीक है? अपन चीजों को समझ के लेट्स ट्राई टू लर्न दी ऑडिट इन अ प्रैक्टिकल मैनर, ठीक है? तो अभी जैसे ही एनुअल रिपोर्ट खुल जाती है तो आई विल वॉक यू थ्रू कि एक अजर्शन क्या होती है, then what is basically the risk against that assertion, what the company has put in as control, and what are the planned procedures, ठीक है? planned procedures that an auditor needs to perform to address this risk. तो इसे हम बोलते हैं रिस्क बेस्ड ऑडिट, ठीक है? अभी हम आगे के चैप्टर्स में आएंगे, बट आई वांट टू यू टू बी वेरी वेरी क्लियर कि व्हाट डू यू मीन बाय रिस्क बेस्ड ऑडिट, ठीक है? तो अभी मैं आपको दिखाता हूं, एनुअल रिपोर्ट जैसे ही खुल जाए तो पेरोल एक्सपेंस है, ठीक है? तो ये हो गया अपकॉर्ड, इसे हम बोलते हैं अपकॉर्ड। अकाउंट बैलेंस, क्लास ऑफ ट्रांजैक्शन एंड डिस्क्लोजर्स, ठीक है? तो क्लास ऑफ ट्रांजैक्शन एंड डिस्क्लोजर्स, अकाउंट बैलेंस क्या होता है, बैलेंस शीट के लिए। क्लास ऑफ ट्रांजैक्शन किसके लिए होता है, पी&एल के लिए। और डिस्क्लोजर्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट डिस्क्लोजर के लिए। तो अकाउंट बैलेंस, क्लास ऑफ ट्रांजैक्शन एंड डिस्क्लोजर्स इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट वर्ड, ठीक है? अभी चलते हैं, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड पेरोल एक्सपेंस। पेरोल एक्सपेंस अभी मैनेजमेंट ने क्या दिखाया होगा अपनी बैलेंस शीट में, अपनी बैलेंस शीट में उन्होंने दिखाया होगा एम्प्लॉय बेनिफिट्स एक्सपेंस, करेक्ट? उन्होंने एम्प्लॉय बेनिफिट्स एक्सपेंस दिखाया होगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में। तो एक काम करते हैं, चलते हैं सीधा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के ऊपर। तो जस्ट वन सेकेंड, यस, परफेक्ट। अभी मैनेजमेंट क्या बोल रहा है, लेट सपोज यहां से स्टार्ट करते हैं, अपन इसको समझना चाहते हैं। एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस ये बोल रहा है 560 करोड़ का यूफ्लेक्स ने खर्चा किया, मैनेजमेंट बोल रहा है यूफ्लेक्स ने 560 करोड़ का खर्चा किया। तो 560 करोड़ का खर्चा किया, इसका मतलब क्या हुआ? वो कौन सी अजर्शन पे बोल रहा है मैनेजमेंट? मैनेजमेंट बोल रहा है कि मैंने खर्चा किया, तो वो बोला अकरेंस, ठीक है? अकरेंस पे बोल रहा है। फिर वो क्या बोल रहा है कि जिन बंदों के लिए मैंने खर्चा किया वो एग्जिस्ट करते हैं, तो वो बोल रहा है एग्जिस्टेंस, ठीक है? एग्जिस्टेंस ऑफ द एम्प्लॉय, एग्जिस्टेंस, ठीक है? फिर एग्जिस्टेंस, ठीक है? फिर हमने बोला अकरेंस, एग्जिस्टेंस, राइट? फिर वो क्या बोल रहा है, और क्या बोल रहा है? वो ये बोल रहा है कि जो अमाउंट निकला है पेरोल का, दैट इज एक्यूरेट, एक्यूरेसी, एक्यूरेसी ऑफ दिस अमाउंट। तो बेसिकली ये सारी अजर्शन बोल रहा है, ठीक है? अभी अपन एक अजर्शन पे चल रहे हैं जहां पे मैनेजमेंट बोल रहा है एम्प्लॉय डू एग्जिस्ट, ठीक है? एम्प्लॉय डू एग्जिस्ट। इसके लिए हमने क्या बोला, मेरी रिस्क क्या है? मेरी रिस्क ये है कि एम्प्लॉय डज नॉट एग्जिस्ट। ये ऑडिटर बोल रहा है कि मेरे लिए ये रिस्क है कि बंदा एग्जिस्ट नहीं करता फिर भी उसका खर्चा आ रहा है, ठीक है? अभी कंपनी ने क्या बोला, ये तेरे लिए रिस्क है, तो मैंने इसके लिए कंट्रोल लगा रखा है कि बैकग्राउंड वेरिफिकेशन इज डन फॉर ईच एंड एवरी ज्वाइनर। बैकग्राउंड वेरिफिकेशन इज डन फॉर ईच एंड एवरी न्यू ज्वाइनर। ये कंपनी ने ईच एंड एवरी न्यू ज्वाइनर, बेसिकली ये उसने इस रिस्क को एड्रेस करने के लिए कंट्रोल लगा रखा है। तो बेसिकली अगर मैं अब आपको पुट करूं इस तरीके से, तो वन सेकेंड, परफेक्ट। तो अभी मेरी अजर्शन क्या थी इसमें, पेरोल एक्सपेंस क्या हुआ है अकरेंस। अकरेंस, खर्चों में हमेशा अकरेंस अजर्शन होती है। खर्चों में मतलब खर्चा हुआ है या रेवेन्यू हुआ है, रेवेन्यू
मतलब अर्न किया है, तो अकरेंस इज ऑलवेज असर्शन इन पी एंड एल आइटम्स, ठीक है। अभी यही प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में चलते हैं। प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट बैलेंस शीट में क्या बोल रहा है, हमसे कुछ बोलना चाह रहा है ये बैलेंस, ठीक है। ये बैलेंस हमसे क्या बोलना चाह रहा है, हम समझते हैं इस बैलेंस को, ठीक है। लेट्स ट्राई टू फिगर आउट कि ये बैलेंस हमसे क्या बोलना चाह रहा है, ठीक है। ये हमसे क्या बोलना चाह रहा है, 1 सेकेंड। तो मैं ये पूछ रहा था आपसे, ये प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट का जो बैलेंस है, ये हमसे कुछ कहना चाह रहा है। ये क्या कह रहा है कि इतने रुपए की वैल्यू का पीपी एग्जिस्ट करता है, एग्जिस्टेंस इज दी वन असर्शन। ये जो पीपी का वैल्यू है दैट इज एक्यूरेट, ठीक है। पीपी इज एक्यूरेट, पीपी डू एग्जिस्ट, ठीक है। पीपी का वैल्यूएशन सही है, तो वैल्यूएशन इज, वैल्यूएशन मींस एक्यूरेसी, ठीक है। तो बेसिकली पीपी एग्जिस्ट, और जितना भी पीपी कंपनी के पास है वो इस अकाउंट बैलेंस में कंप्लीट है। तो कंप्लीटनेस, एग्जिस्टेंस एंड एक्यूरेसी, दीज आर दी थ्री असर्शंस मैनेजमेंट इज ट्राइंग टू से व्हेन दे आर पुटिंग दिस नंबर इनटू द बैलेंस शीट। तो हर बैलेंस शीट या पीएनएल या डिस्क्लोजर्स का नंबर कुछ अजर्ट करता है, कुछ बोलता है अपने आप से, उसे हम बोलते हैं अजर्शन। अब उस अजर्शन के सामने एक रिस्क होती है कि पेरोल पे जो बंदा है वो एग्जिस्ट ही नहीं करता, इट डज नॉट एग्जिस्ट, तो दिस इज माय रिस्क। उसको जो एड्रेस करता है वो होता है कंट्रोल। अभी फिर कंट्रोल को बेसिकली ऑडिटर को टेस्ट करना पड़ता है। तो अभी दो टाइप के प्रोसीजर होते हैं। वन इज कंट्रोल प्रोसीजर, कंट्रोल को टेस्ट करने के लिए प्रोसीजर होगा। दूसरा होगा सब्सटैंटिव प्रोसीजर, ठीक है। सब्सटैंटिव प्रोसीजर जहां पे बेसिकली ऑडिटर सब्सटैंटिवली टेस्ट करेगा। अभी देखो दोनों में फर्क क्या होता है। कंट्रोल में वो ये चेक करेगा, कंपनी क्या बोल रही है कि मैं हर बार बैकग्राउंड चेक कराती हूँ जब भी बेसिकली नया ज्वाइनर आता है, ठीक है। तो बेसिकली इसमें क्या करेगा, ऑडिटर क्या करेगा, अराउंड 5 to 10 इंस्टेंसेस पिक करेगा ऑफ न्यू ज्वाइनर्स, ठीक है, और देखेगा कि क्या ये कंट्रोल ऑफ न्यू ज्वाइनर्स पिक करेगा और चेक करेगा क्या ये कंट्रोल ऑफ बैकग्राउंड चेक वेरिफिकेशन इज बीइंग डिजाइंड एंड इम्प्लीमेंटेड एंड ऑपरेटिंग इफेक्टिवली, ठीक है। तो एक सैंपल से वो चेक करता है डिजाइन, ठीक है। डिजाइन मींस कि क्या कंट्रोल सही तरीके से डिजाइंड है, ठीक है। डिजाइन में वो डिजाइन चेक करता है। अगर उसको लगता है कि कंट्रोल सही तरीके से डिजाइंड है तो फिर वो ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस चेक करता है। तो कंट्रोल में दो टाइप के प्रोसीजर होते हैं, एक होता है डिजाइन टेस्टिंग, मतलब कंट्रोल डिजाइन सही तरीके से है। फिर वो क्या देखता है, इसकी ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस, मतलब बेसिकली क्या ये चल भी रहा है या नहीं चल रहा है। तो ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस इज अनदर पॉइंट। तो बेसिकली डिजाइन में वो सिर्फ एक सैंपल टेस्ट करता है, और ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस में वो मल्टीपल इंस्टेंसेस टेस्ट करता है ड्यूरिंग द ईयर कि क्या ये कंट्रोल हुआ है वैसे ही जैसे बोला गया है। तो दीज आर कंट्रोल प्रोसीजर। अब सब्सटैंटिव प्रोसीजर क्या हो सकता है कि एम्प्लॉय डू एग्जिस्ट, इसके लिए वो क्या कर सकता है सब्सटैंटिवली, तो वो सिंपली क्या कर सकता है, वो देखेगा अटेंडेंस डेटा को मैच कर सकता है। मैच किसके साथ कर सकता है, एम्प्लॉय डेटा से, ठीक है। अगर वो देखता है कि उस बंदे ने अटेंडेंस लगाई है उस दिन की, तो इसका मतलब वो आया है और उसको सैलरी मिलनी चाहिए। इसका मतलब क्या होता है, अटेंडेंस डेटा कैसे बनता है, बेसिकली कंपनी में जब आप एंट्री लेते हो ना, तो बेसिकली वो कार्ड टच करना पड़ता है, तो वहां से पता चल जाएगा अगर एम्प्लॉय आया है ऑफिस में तो इसका मतलब एम्प्लॉय एग्जिस्ट। तो अगर वो उस रिपोर्ट से मैच कर लेगा कि भाई जिस बंदे को सैलरी जा रही है तो इसका मतलब एम्प्लॉय है। ऐसा नहीं है कि कंपनी में एम्प्लॉय नहीं है और फिर भी खर्चा हो रहा है, तो ये अजर्शन मीट हो रही है। तो बेसिकली इस तरीके से ऑडिट होता है। तो दिस इज नोन एज रिस्क बेस्ड ऑडिट। अभी आपको मैंने सिंपल एक एग्जांपल समझाया है जहां पे पेरोल का खर्चा है। रिस्क अजर्शन क्या थी, एम्प्लॉय डू एग्जिस्ट। रिस्क क्या थी, एम्प्लॉय डज नॉट एग्जिस्ट। क्या कंट्रोल था, कंपनी ने बोला कंट्रोल है बैकग्राउंड चेक वेरिफिकेशन ऑफ द न्यू ज्वाइनर। फिर अब हमने कंट्रोल में दो स्टेप करे, एक डिजाइन टेस्टिंग, एक ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस टेस्टिंग, ठीक है। डिजाइन में हमने बोला क्या कंपनी के पास एक कंट्रोल डिजाइंड है, हमने देखा हाँ यार बैकग्राउंड चेक लेते हैं। फिर हमने उसको मल्टीपल इंस्टेंसेस में टेस्ट किया, दैट इज नॉन एज ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस टेस्ट, ठीक है। फिर सब्सटैंटिवली हमने देखा कि यार क्या एम्प्लॉय सही में एग्जिस्ट करता है, हमने किस असर्शन को कैसे टेस्ट किया। हमने देखा यार जो एम्प्लॉय स्वाइप करता है एंट्री के टाइम पे, तो कार्ड पे वो टच करता है, उसकी रिपोर्ट निकाली, वो बंदा ऑफिस में आया। अब हमने उसको मैच किया उसकी सैलरी डिटेल से, हमने देखा यार ये बंदा ऑफिस आया और उसको सैलरी आई, तो दैट एंश्योर्स दैट द एम्प्लॉय डू एग्जिस्ट, ठीक है। तो इस तरीके से ऑडिट होता है, मैंने आपको समझा दिया सिंपल, एकदम सिंपल भाषा में आपको ऑडिट समझाया है इसमें। अभी चलते हैं वापस से, अभी हम कहाँ पे थे,
अभी हम थे ऑडिट से हटके हम थोड़ा सा प्रैक्टिकल लाइफ में घुस गए थे। अभी चलते हैं नेचर ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। तो नेचर ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, तो हमने यहाँ पे क्या पढ़ा कि बेसिकली फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में जजमेंट लेता है मैनेजमेंट, बहुत सारी जजमेंट्स लगाता है, राइट। फिर हमने बोला मैनेजमेंट कंट्रोल्स लगाता है, ठीक है। मैनेजमेंट ने कंट्रोल क्या लगाया है इस केस में कि बैकग्राउंड चेक होगा, लेकिन ये कंट्रोल कभी कभार एम्प्लॉयज मिलके सरकमवेंट कर देते हैं। सरकमवेंट मीन्स उसे ओवर पावर कर देते हैं। कंपनी ने मान लो कंट्रोल लगाया बैकग्राउंड चेक होगा, बट बंदों ने इसे ओवरराइड कर दिया। अब बंदों ने करवाया ही नहीं किसी का, मतलब करवाया नहीं। कंपनी का कंट्रोल है कि बैकग्राउंड चेक होना चाहिए, लेकिन करवाया नहीं। तो इट मीन्स जो कंट्रोल है ना, दैट कैन बी ओवर पावर्ड बाई कॉल्यूजन। कॉल्यूजन मीन्स चार बंदे मिलके इस कंट्रोल को ओवर पावर कर सकते हैं। अब इसके लिए एग्जाम्पल, बहुत अच्छा एग्जाम्पल इंस्टीट्यूट ने बनाया। तो कंपनी का क्या कंट्रोल है कि बेसिकली जब सामान आएगा तो बंदा जो परचेज इनवॉइस पे होगा ना, उस पर साइन करेगा और उसे स्टैम्प करेगा। तो वैसे सामान आया तो सामान के टाइम पे जो इनवॉइस आया उस पर साइन करेगा और स्टैम्प करेगा। फिर ये जाएगा अकाउंट्स डिपार्टमेंट के पास फॉर द पर्पस ऑफ पेमेंट। मतलब अकाउंट्स वाला तब तक पैसा नहीं देगा जब तक ये साइन एंड स्टैम्प नहीं हो, और जब तक सामान ना आया हो। ये साइन और स्टैम्प तब तक होगा जब तक सामान आएगा और उसने वेरीफाई कर लिया हाँ सामान आया है, फिर वो उस पर साइन करेगा जिस बंदे ने रिसीव किया सामान, और वो स्टैम्प लगाएगा और फिर जाएगा अकाउंट्स डिपार्टमेंट पे। फिर क्या होगा, बेसिकली वो पेमेंट रिलीज होगी। लेकिन इस केस में हुआ क्या, बंदे ने सामान नहीं आया तब भी उस पर लिख दिया कि हाँ सामान रिसीव्ड, स्टैम्प भी कर दी और अकाउंट्स डिपार्टमेंट को भेज दिया, और दोनों मिली भगत थी। दोनों ने देखा कि हाँ यार दोनों की मिली भगत थी, और दोनों ने पैसे एक ऐसे अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए जो उनका खुद का अकाउंट था। तो यहाँ पे हो गया फ्रॉड, ये हो गया कोल्यूजन। अभी इसे बोलते हैं दो बंदों ने मिलके, कंपनी का जो कंट्रोल था कि अकाउंट्स वाला वेरीफाई करेगा कि भाई उसने साइन और स्टैम्प किया, उसने सब कुछ किया, लेकिन बेसिकली सामान आया ही नहीं था, ठीक है। तो मैनेजमेंट ऑफ अ कंपनी हैज डिजाइन्ड अ कंट्रोल that all purchase bills should reflect a stamp and signature of an authorized person in goods receiving section of the company, stating the date and time of receiving the goods in the premises. It is an example of internal control devised by the company to ensure that only those purchase bills are produced for payment for which goods have been actually received. Now, what happens if concerned accountant and authorized person and goods receiving collude? It's a case of overriding of internal controls. तो हमने बोला auditor might not detect financial statement material misstatement due to certain limitations of an audit, ठीक है। Audit is subject to certain limitation. The first limitation is nature of financial statement reporting. अभी मैनेजमेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को बनाने के लिए बहुत सारी जजमेंट्स करता है। जजमेंट्स आर ऑलवेज सब्जेक्टिव। उसको लगा कि इसका प्रोविजन नहीं बनाना चाहिए, बट एक्चुअल में प्रोविजन बनना चाहिए था, तो दीज आर ऑल जजमेंटल थिंग्स, ठीक है। तो इट इन्वॉल्व जजमेंट बाय द मैनेजमेंट, ठीक है। तो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का नेचर ही ऐसा है कि इसमें जजमेंट्स होती है, ठीक है। फिर हमने बोला इसमें मैनेजमेंट खुद ही कंट्रोल बनाता है, बट देयर माइट बी इंस्टेंसेस जहां पे बंदे इसे कल्यूड करके इन कंट्रोल्स को ओवर पावर कर दे, ठीक है। जैसे हमारे वाले एग्जांपल में हमने क्या पढ़ा कि बैकग्राउंड चेक ही नहीं हुआ, ठीक है। दूसरा इंस्टीट्यूट के एग्जांपल में क्या हुआ कि वो परचेज में स्टैंप भी हुआ, साइन भी हुआ, बट सामान नहीं आया, क्योंकि दोनों ने कल्यूड किया हुआ था, अकाउंट्स वाले ने और जो गुड्स रिसीविंग डिपार्टमेंट वाला बंदा था, दोनों की अच्छी गहरी दोस्ती थी। वो पैसा उन्होंने निकाल के अपने बैंक अकाउंट में डाल दिया, तो ऐसे हो गया कंपनी में फ्रॉड, ठीक है। तो नेचर ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग ऐसा है कि हम शायद अपना ऑडिट करें और हमारे को मान लो वो गलती से सैंपल में नहीं आया, ठीक है। तो दैट इज सेकंड पॉइंट, नेचर ऑफ ऑडिट प्रोसीजर्स। हमारी प्रोसीजर्स ही ऐसे है कि हम परफॉर्म करते सैंपल पे, ठीक है। अब मान लो बेसिकली फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में क्या हुआ कि बेसिकली मैंने बोला वो उसने स्टैम्प किया साइन किया बट सामान नहीं आया, ठीक है। स्टैम्प किया साइन किया बट सामान नहीं आया, और उसने कल्यूड कर दिया इस कंट्रोल को, ठीक है। मतलब कल्यूड मींस दोनों ने मिलके इस कंट्रोल की धज्जियां उड़ा दी, धज्जियां, ठीक है। ये कंट्रोल चला ही नहीं। फिर अब चलते हैं नेचर ऑफ ऑडिट प्रोसीजर। अब मैंने बोला यार कायदे से तो मेरे ऑडिट में अगर ये सैंपल आ जाता तो मैं पकड़ लेता ये गलती हुई है, लेकिन मेरे सैंपल में भी नहीं आया, तो दैट इज द लिमिटेशन ऑफ माय ऑडिट प्रोसीजर। तो मेरा क्या है, मैं जो ऑडिट करता हूं ना, दैट इज ओनली बाय टेस्टिंग दी सैंपल्स, दैट इज ओनली बाय टेस्टिंग दी सैंपल्स। फिर मेरे पास लीगल लिमिटेशन है, मैं बंदूक रख के डेटा नहीं निकलवा सकता, ठीक है। मैनेजमेंट मे नॉट प्रोवाइड कंप्लीट इन्फॉर्मेशन एज रिक्वेस्टेड बाय ऑडिटर, ठीक है। वो चाहे मुझे इन्फॉर्मेशन ना दे। अब मैं ज्यादा से ज्यादा क्या कर सकता हूँ, मैं इसकी ऑडिट रिपोर्ट क्वालिफाई कर सकता हूँ कि भाई इसने मुझे इस चीज का डेटा नहीं दिया, इसलिए मैं अपना ओपिनियन नहीं बना पा रहा, लेकिन मैं बंदूक रख के उसे डेटा नहीं निकलवा सकता। देयर इज नो वे बाय विच द ऑडिटर कैन फोर्स मैनेजमेंट टू प्रोवाइड कंप्लीट इन्फॉर्मेशन, ठीक है।
इन केस ही इज नॉट प्रोवाइडेड विद द रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन ही कैन ओनली रिपोर्ट। तो हमारा ज्यादा से ज्यादा मैं क्या कर सकता हूँ, अगर मुझे कोई डेटा नहीं दे रहा है तो मैं बंदूक नहीं रख सकता, मैं ज्यादा से ज्यादा अपने रिपोर्ट में लिख सकता हूँ कि भाई इसने मुझे डेटा नहीं दिया, लेकिन मैं उसके सर पे बंदूक रख के डेटा नहीं निकलवा सकता। तो मुझे नहीं पता क्या वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट सही है या नहीं है। तो मैंने बोला दो चीजें हैं, एक तो नेचर ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, दूसरा नेचर ऑफ ऑडिट प्रोसीजर। मैंने नेचर ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में पढ़ा यार, मैनेजमेंट ना बहुत सारी जजमेंट लगाती है, इन जजमेंट में सब्जेक्टिवनेस होती है और अनसर्टेनिटी भी होती है। तो द जजमेंट्स में इन्वॉल्व सब्जेक्टिव डिसीजंस और अनसर्टेनिटीज। ऑब्वियस सी बात है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट माइट नॉट डिस्क्लोज दी प्रॉपर इंफॉर्मेशन, कि जो मैनेजमेंट की जजमेंट की वजह से बायस्ड इंफॉर्मेशन भी हो सकती है, ठीक है। तो दैट इज प्रॉब्लम ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। फिर मैंने बोला मैनेजमेंट कंट्रोल्स बनाती है, ठीक है। तो मैनेजमेंट एक्नॉलेजेस इट्स रिस्पांसिबिलिटी ऑफ द प्रिपरेशन ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट इन अकॉर्डेंस विद एप्लीकेबल एफआरएफ एंड फॉर डिवाइसिंग सुटेबल इंटरनल कंट्रोल्स। हाउएवर सच कंट्रोल्स मे नॉट हैव ऑपरेटेड, वो ऑपरेट ही नहीं हुआ टू प्रोड्यूस रिलायबल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन ड्यू टू देयर ओन लिमिटेशंस। तो क्या पता वो कंट्रोल ऑपरेट ही नहीं हुआ। फिर चलते हैं नेचर ऑफ ऑडिट प्रोसीजर्स। मैंने बोला अब जैसे इस एग्जांपल में क्या हुआ, इसमें बेसिकली सामान आया, सामान पे साइन भी हुआ, स्टैम्प भी हुआ, साइन एंड स्टैम्प है, और अकाउंट्स ने पेमेंट भी कर दी, लेकिन ना सामान ही नहीं आया था, एक्चुअल में कंट्रोल ही खत्म हो गया, ठीक है। तो अभी नेचर ऑफ ऑडिट प्रोसीजर क्या है कि हम सैंपल पे टेस्ट करते हैं, मैं बंदूक रख के डेटा नहीं निकलवा सकता, तो देयर आर लीगल लिमिटेशन, ठीक है। अभी मैनेजमेंट क्या पता कई बार ना डिसऑनेस्ट होती है, मैनेजमेंट क्या पता तुमसे कुछ छुपा रही हो और वो तुमसे कुछ बताए भी ना। तो मैनेजमेंट में कंसिस्ट ऑफ dishonest and unscrupulous people and may be itself involved in the fraud. It may be engaged in concealing fraud by designing sophisticated and carefully organized schemes which may be hard to detect by the auditor. So basically अभी देखो, it may be engaged in concealing fraud by designing sophisticated and carefully organized scheme which may be hard to detect by the auditor. अब इसका एग्जांपल क्या है, मान लो कंपनी ने क्या किया, कंपनी को 100 रुपए ना, 100 रुपए, ठीक है। अब देखो कंपनी कैसे फ्रॉड कर सकती है, ठीक है। कंपनी ने क्या किया, 100 रुपए कंपनी को रिसीव हुए, ठीक है, 100 रुपए कंपनी को रिसीव हुए। अब कंपनी का जो वो बंदा है ना, वो इसे अपने जेब में डालना चाह रहा है, जेब में डाल के फ्रॉड करना चाह रहा है। तो वो क्या बोलेगा, ये मान लो एक डेटर से पैसा रिसीव होना था, डेटर से, ठीक है। ये क्या हुआ, 365 दिन से पैसा रिसीव नहीं हुआ, 365 डेज और मोर ये पैसा रिसीव नहीं था, ठीक है। तो उसने क्या बोला यार कि भाई इससे पैसा आना नहीं है, इसको कर दो बेड डेट, इसको बुक कर दो बेड डेट। तो हमने क्या किया, एंट्री डाल दी बेड डेट अकाउंट डेबिट, बेड डेट अकाउंट डेबिट, डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस, हमने बेड डेट कर दी और टू डेटर कर दिया। अब हमने डेटर को खत्म कर दिया, हमने बोला यार ये 100 रुपए नहीं आएंगे कभी भी, इसको राइट ऑफ कर दो। लेकिन अब हुआ क्या, ये 100 रुपए आ गए। अब कायदे से क्या होना चाहिए था, इसको बुक्स में इनकम बुक करनी चाहिए थी, लेकिन भाई साहब ने अपनी जेब में पैसे डाल दिए। तो मतलब हुआ क्या, कंपनी का जो पैसा था वो खुद की जेब में जाके बैठ चुका है अब। तो अब ये प्रॉब्लम है। तो बेसिकली मैनेजमेंट में भी डिसऑनेस्ट, और मैनेजमेंट में डिजाइड वेरियस स्कीम्स टू टू हाइड द फैक्ट, ठीक है। अभी उसको 100 रुपए का 100 रुपए का फ्रॉड करना था, ठीक है। लेकिन उसने क्या किया, उसे बेड डेट की तरह पहले राइट ऑफ करवाया। ये स्कीम हो गई ऑफ द मैनेजमेंट टू हाइड दैट फ्रॉड, ठीक है, टू हाइड दैट फ्रॉड। तो इट मे बी एंगेज्ड इन कंसीलिंग फ्रॉड बाय डिजाइनिंग सोफिस्टिकेटेड एंड कार्फुली ऑर्गेनाइज्ड स्कीम। पहले उसने बेड डेट को राइट ऑफ करवाया और फिर वो पैसे लेके भाग गया, मतलब गबन हो गए 100 रुपए। तो that is a management intention. Management might be dishonest. It may produce fabricated documents before auditor. Fabricated means कि एग्रीमेंट हुआ ही नहीं, फिर भी उसने दिखा दिया कि साइंड एंड एग्जीक्यूटेड एग्रीमेंट है। मान लो इंडियस या अकाउंटेंट स्टैंडर्ड बोलता है कि भाई कोई भी रेवेन्यू रिकॉर्ड करने से पहले, रेवेन्यू रिकॉर्ड करने से पहले आप दोनों के बीच में एग्रीमेंट होना चाहिए। एग्रीमेंट मींस आपके बीच में कॉन्ट्रैक्ट, मतलब बेसिकली आपके बीच में अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि आपको ये सर्विस देनी है, आपको ये सर्विस देनी है। तो अब बेसिकली हुआ क्या, ऐसी कोई अंडरस्टैंडिंग ही नहीं थी। कंपनी ने क्या किया, वो अंडरस्टैंडिंग हुई नेक्स्ट ईयर में जाके, लेकिन कंपनी ने पिछले साल ही रिकॉर्ड कर लिया इसका रेवेन्यू। क्या बोल के कि उसने एक फर्जी डॉक्यूमेंट बनाया जिसमें दोनों ने साइन कर दिए, फर्जी डॉक्यूमेंट बनाया और बोला कि हाँ भाई, कस्टमर के साइन चिपका दिए कि भाई हाँ भाई कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, और रेवेन्यू रिकॉर्ड कर दिया। तो it मतलब basically it may produce fabricated documents before auditor to lead him to believe that the audit evidence is valid. Auditor is not an expert in authentication of documents. ये हमारा स्कोप वाले पार्ट से कवर होता है, ठीक है। तो अब
वापस से रिवाइज करते हैं। नेचर ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, मैंने बोला फाइनेंशियल रिपोर्टिंग को बनाने में बहुत सारी जजमेंट्स होती है। दीज जजमेंट्स माइट बी सब्जेक्टिव and might lead to uncertain you can say these might lead to a certain degree of uncertainty। फिर मैंने बोला मैनेजमेंट कंट्रोल बनाता है, लेकिन मैनेजमेंट या उसके एम्प्लॉय इस कंट्रोल को कोल्यूड कर सकते हैं, ठीक है। कोल्यूड मींस मिलके ओवर पावर्ड कर सकते हैं, ठीक है। तो बेसिकली ये हो गया। फिर हमने पढ़ा नेचर ऑफ ऑडिट प्रोसीजर, मैंने बोला मैं करता ही सैंपल पे टेस्टिंग हूँ, तो पता चले मैंने वो सैंपल में वो दिक्कत ही ना है। फिर दूसरा है लीगल लिमिटेशन, मैं बंदूक रख के डेटा नहीं निकलवा सकता। अब पता चलता है कि मैनेजमेंट ही डिसऑनेस्ट है, मैनेजमेंट इज नॉट ऑनेस्ट, और वो खुद ही मुझे फ्रॉड, मतलब खुद ही मुझे पागल बनाने का काम कर रही है। जैसे कि उसने एक फ्रॉड किया 100 रुपए का, उसने पहले बेड डेट्स राइट ऑफ किए और 100 रुपए जो कलेक्ट किए, मतलब जो 100 रुपए थे वो हटा दी कंपनी बुक से, बेड डेट्स को राइट ऑफ मारा। एक्चुअल में वो कलेक्ट हो गए थे पैसे, लेकिन उसको राइट ऑफ मार के खुद ही पैसे छुपा लिए। तो बेसिकली माई ऑडिट माइट नॉट डिटेक्ट, मैंने मेरे को तो सही लगाना है यार कि 365 दिन से ऊपर का डेटर है, राइट ऑफ कर देना चाहिए, लेकिन मैनेजमेंट की इंटेंशन ही थी फ्रॉड करना, ठीक है। तो ये नेचर ऑफ ऑडिट प्रोसीजर माइट नॉट बी एबल टू डिटेक्ट मैनेजमेंट इंटेंशन टू डिफ्रॉड द कंपनी, ठीक है। फिर है अगला पॉइंट रिलेटेड पार्टी। इट इज क्वाइट पॉसिबल दैट द entity may have entered into some transaction with the related parties. Such transaction may be only paper transaction, मतलब एक्चुअल में ट्रांजेक्शन नहीं हुआ, सिर्फ और सिर्फ पेपर्स पे ट्रांजेक्शन हुआ। मैंने अपनी रिलेटेड पार्टी को सेल दिखा दी, मुझे क्या करना था, अपना शेयर प्राइस बढ़वाना था, तो मैंने एक फर्जी सेल दिखवा दी अपनी रिलेटेड पार्टी को, ठीक है। एंड मे नॉट हैव एक्चुअली अकर्ड, द ऑडिटर मे नॉट बी अवेयर ऑफ सच रिलेटेड पार्टी रिलेशनशिप और ऑडिट प्रोसीजर्स मे नॉट बी एबल टू डिटेक्ट प्रोबेबल रॉन्ग डूइंग्स इन सच ट्रांजैक्शंस। तो दो चीजें हैं, रिलेटेड पार्टी रिलेशनशिप और दूसरा है रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन। सबसे पहले होती है रिलेटेड पार्टी रिलेशनशिप, मतलब मैं, मेरी वाइफ या मेरे फादर या मेरी मदर, दोज ऑल आर माई रिलेटेड पार्टीज, ठीक है। तो उसको बोलते हैं रिलेटेड पार्टी रिलेशनशिप। मैंने उनके साथ में कोई ट्रांजेक्शन करी, मैंने अपने फादर के साथ कोई ट्रांजेक्शन करी, तो दैट इज नोन एज रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन। तो कंपनी दो तरीके से आपको घुमा सकती है एज ऑडिटर, या तो वो रिलेटेड पार्टी रिलेशनशिप को डिस्क्लोज ही ना करे, मतलब वो ये बोले ही ना कि मेरे साथ ये बंदा रिलेटेड पार्टी है, ठीक है, वो आपसे छुपा सकती है रिलेटेड पार्टी को, ठीक है। या फिर वो ट्रांजेक्शन किया है उसको छुपा सकती है। तो दो ऑप्शन है बेसिकली, या तो वो रिलेटेड पार्टी की पूरी पूरी छुपा देगी, ठीक है, तो यू माइट नॉट बी एबल टू डिटेक्ट, वो ट्रांजेक्शन बोलेगी कि ये नॉन रिलेटेड पार्टी के साथ है, लेकिन वो एक्चुअल में ट्रांजेक्शन हुआ रिलेटेड पार्टी के साथ। एक्चुअल में ऑडिटर ध्यान तो देता है रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शंस पे, लेकिन द पॉइंट इज अगर वो रिलेटेड पार्टी ही सही से नहीं आइडेंटिफाई हुई तो ट्रांजेक्शन का तो कोई पॉइंट ही नहीं बनता ना। तो बेसिकली द कंपनी माइट हाइड फ्रॉम यू सम ऑफ द रिलेटेड पार्टीज, तो ये भी एक प्रॉब्लम है। तो दिस इज द प्रॉब्लम ऑफ नेचर ऑफ आवर ऑडिट प्रोसीजर। तो अभी चलते हैं वापस से रिवाइज करते हैं। नेचर ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, मैंने बोला मैनेजमेंट जजमेंट बनाती है, जजमेंट ऑलवेज सब्जेक्टिव होती है, ठीक है। फिर मैंने बोला मैनेजमेंट ही प्रिपेयर करती है फाइनेंशियल स्टेटमेंट, मैनेजमेंट ही कंट्रोल बनाती है। तो मैनेजमेंट के बंदे या मैनेजमेंट खुद चाहे तो उस कंट्रोल को ओवरराइड कर सकती है, कोल्यूड करके उस कंट्रोल को मतलब उसको बेकार बना सकती है, ठीक है। तो अब हमने इसके लिए क्या पढ़ा, सच अ प्रोबेबल कॉलिजन इज वन ऑफ द लिमिटेशन ऑफ द इंटरनल कंट्रोल इटसेल्फ। फिर हमने बोला हम जो परफॉर्म करते हैं वो सैंपल बेसिस पे ऑडिट करते हैं, तो आर प्रोसीजर्स आर ओनली रेस्ट्रिक्टेड टू सैंपल्स एंड देयरफॉर वी माइट नॉट बी एबल टू डिटेक्ट द मिस स्टेटमेंट। फिर मैंने बोला मैं बंदूक रख के डेटा नहीं निकलवा सकता। फिर मैंने बोला मैनेजमेंट ही पता चले डिसऑनेस्ट हो, अब पता चले कंपनी खुद ही फ्रॉड कर रही हो, तो मैं तो पता चले मेरे को हमेशा एविडेंस कैसे दिखाए जाएंगे कि भाई डेटर मेरा 365 से ज्यादा था, मैंने राइट ऑफ मार दिया, लेकिन वो पैसा एक्चुअल में कलेक्ट हो गया और कंपनी ने 100 रुपए गायब कर दिए। फिर कंपनी मुझे कैसे पागल बना सकती है कि भाई रिलेटेड पार्टी है ही नहीं मेरी ये, तो ठीक है। तो माई ऑडिट प्रोसीजर्स माइट नॉट डिटेक्ट अ सम ट्रांजेक्शन वेयर there was a existence of related party relationship, but it is always not necessary that my audit procedure will be able to detect it, ठीक है। अभी चलते हैं नॉट इन द नेचर ऑफ इन्वेस्टिगेशन। अभी हमने पढ़ा था ऑडिट इज सेपरेट फ्रॉम इन्वेस्टिगेशन, तो ऑडिट इज नॉट एन ऑफिशियल इन्वेस्टिगेशन, हेंस द ऑडिटर कैन नॉट ऑब्टेन एब्सोल्यूट एश्योरेंस that the financial statement are free from material misstatement due to fraud or error. So it's not an investigation, it's only a reasonable assurance, it's not an absolute अश्योरेंस, ठीक है। अभी चलते हैं अपना चौथा पॉइंट। मैंने बोला ऑडिट को टाइम लिमिट होती है ऑडिट करने की, आपके 1 महीना 1.5 महीना। अभी आपको पता है लिस्टेड कंपनी के केस में
साल खत्म होते ही, जैसे मार्च 31 को अभी साल कंप्लीट हुआ है, राइट? तो 31 मार्च के जो फाइनेंशियल्स है ना, 31 मार्च के जो फाइनेंशियल है, 31 मार्च 2024 के फाइनेंशियल, इनको देने पड़ते हैं 60 दिन के अंदर अंदर स्टॉक एक्सचेंज को, ठीक है? तो अभी इनको लिए लास्ट डेट ऑफ फाइलिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या है? 30 मई। तो 30 मई 2024 को सारी लिस्टेड कंपनी के फाइनेंशियल आ जाएंगे स्टॉक एक्सचेंज पे, ठीक है? तो बेसिकली टाइमलीनेस ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, तो इस केस में आप क्या कर पाओगे? सिर्फ सैंपल पे ऑडिट कर पाओगे, यू कांट गिव एब्सोल्यूट एश्योरेंस। सो टाइमलीनेस ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग एंड डिक्रीज इन द रेलेवेंस ऑफ द इंफॉर्मेशन ओवर टाइम। अगर यही रिजल्ट्स आप आज से साल भर बाद दोगे तो फिर फायदा क्या हुआ ऑडिट करवाने का, राइट? तो टाइमली इंपॉर्टेंस इज दैट यू प्रोवाइड दी टाइमली फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। और टाइमली के लिए इंपॉर्टेंट क्या है कि ऑडिट आप करो टेस्ट चेक बेसिस पे, सैंपल बेसिस पे, राइट? सो द रेलेवेंस ऑफ द इंफॉर्मेशन डिक्रीजेस ओवर टाइम। An auditor cannot verify each and every matter. Balance to be struck between the reliability of the information and its cost. तो रिलायबिलिटी और कॉस्ट के, अब ऐसा थोड़ी पूरे साल ही ऑडिट करते रहेंगे भाई, एक लिस्टेड कंपनी है, 2 महीने के अंदर अंदर फाइनेंशियल देने हैं, ठीक है? तो आप क्या करोगे? टेस्ट चेक करोगे, मोटा मोटी देखोगे यार चीजें सही आ रही है नहीं आ रही है, रेशियो सही बैठ रहे नहीं बैठ रहे, कंपनी ने ऐसा कुछ तो नहीं किया, ठीक है? तो ये सब चीजें। अब फिर अगला पॉइंट है फ्यूचर इवेंट्स। भले ही ऑडिट एकदम सही हुआ हो, लेकिन ऐसा हो सकता है कि फ्यूचर में जाके कुछ ऐसा इवेंट हुआ हो जिसकी वजह से फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में दिक्कतें आ जाए। जैसे कि नोकिया, नोकिया का एग्जांपल ले लो, टेक्नोलॉजिकल चेंज हुआ, ये वाले बेसिकली स्मार्टफोन्स आए और नोकिया वाज आउट ऑफ द मार्केट, राइट? तो जब ऑडिटर ने आज से 2004 में उसकी बैलेंस शीट साइन करी होगी तो देयर वर नो गोइंग कंसर्न इश्यूज, राइट? लेकिन जैसे ही वो 2008 में आया तो देयर वर सीवियर गोइंग कंसर्न इश्यूज, ठीक है? तो बेसिकली देयर माइट बी सम फ्यूचर इवेंट्स due to technological advances and some other things that might basically have an impact, ठीक है? तो अभी हमने ये सब पढ़ा। लेट मी जस्ट ट्राई टू रिवाइज इट एंड let me try to revise it. Yeah, revise what we have learned as of now. So what we have learned is basically that, yeah, so the nature of financial reporting is such that that the auditor might not be true to give a true and fair opinion when the material misstatement was there in the financial statement, but the financial reporting is such because management makes estimate and there might be some errors in those estimates that might impact the audit opinion, right? So the financial reporting is such. Moreover, the management designs the control and might be in a situation to basically collude and override that control. Correct. Then audit procedure samples pe hota hai. You don't have a legal limitation to put the put the person on the bullet and then ask for the evidences. You don't have those kind of power, right? You don't have the power of search, you don't have the power of seizure, you don't have the power of oath, ठीक है? तो मैनेजमेंट इंटेंशन अभी क्या हो सकता है कि मैनेजमेंट आपको चाहता ही हो कि फ्रॉड करना, उसने बेड डेट्स की तरह राइट ऑफ करवाया और पैसे 100 रुपए उड़ा दिए, ठीक है? तो आपको लग रहा था सही राइट ऑफ हुआ है, लेकिन हो सकता है कि कंपनी के पास वो पैसे कलेक्ट भी हुए और कंपनी ने वो हटवा दिए, ठीक है? कंपनी माइट नॉट हैव डिस्क्लोज्ड विद द रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन। फिर हमने बोला ऑडिट इज नॉट इन द नेचर ऑफ इन्वेस्टिगेशन एंड बेसिकली आपको टाइमली मैनर पे फाइनेंशियल रिपोर्टिंग करनी पड़ती है, जैसे स्टॉक एक्सचेंज को आपको 7 दिन के अंदर अंदर बताना पड़ता है, करेक्ट? एंड देयर माइट बी सम फ्यूचर इवेंट्स that might lead to some limitations of the audit, right? जैसे Nokia was a very good mobile selling company in 2004, but then Samsung and Vivo and then Oppo quite moved Nokia out of the market, right? There might be some future events or condition that may affect an entity adversely, ठीक है? तो अभी समरी में हमने क्या बोला? नेचर ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, नेचर ऑफ ऑडिट प्रोसीजर, इट्स नॉट इन द नेचर ऑफ इन्वेस्टिगेशन एंड टाइमलीनेस ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग एंड डिक्रीज इन द रेलेवेंस ऑफ द इंफॉर्मेशन ओवर टाइम। अभी एक अपन ना फटाफट एक ये केस स्टडी समझ लेते हैं। इसमें क्या हो रहा है बेसिकली? जीबा प्रोडक्ट्स इज अ पार्टनरशिप फर्म एंगेज्ड इन ट्रेडिंग ऑफ डिजाइनर ड्रेसेस। द फर्म इज अपॉइंटेड JJ and Company to audit their accounts. The auditor was satisfied with the control system of the firm, carried out required procedures and necessary verification. In particular, they carried out sample checking of purchases, traced purchase bills to GST portal, and also made confirmation from the supplier. They were satisfied with the audit evidence obtained by them as part of the audit exercise. An audit report was submitted to the firm, giving an opinion on the financial statement, reflecting a true and fair view. However, later on, it was discovered that the purchase man responsible for procuring dresses were also booking fake purchases of small values
by colluding with ethical dealers. तो अभी हमने बताया ना, बेसिकली वो फेक परचेजेस बुक कर रहा था. पेमेंट टू these dealers was also made in connivance with the अकाउंटेंट थ्रू बैंकिंग चैनल. तो बेसिकली उसने क्या किया, परचेज वाले ने फेक परचेज बुक करी और इनको पेमेंट भी कर दी बाय इन कॉल्यूशन विद द अकाउंटेंट. अकाउंटेंट के साथ परचेज मैनेजर मिला और उसने पेमेंट भी निकाल दी और बेसिकली फेक परचेजेस की. कायदे से ये परचेज हुई नहीं थी, इसकी पेमेंट नहीं जानी चाहिए थी. द पार्टनर्स ऑफ द फर्म ब्लेम ऑडिटर्स फॉर द फ्यूटाइल ऑडिट एक्सरसाइज. आर पार्टनर्स ऑफ द फर्म करेक्ट इन देयर व्यू पॉइंट. तो अब हमने जवाब क्या दिया, मैनेजमेंट ने कंट्रोल बनाया था जहां पे परचेज मैनेजर ने परचेज बुक करनी थी और अकाउंटेंट को वेरीफाई करना चाहिए था कि हाँ भाई ये परचेज वैलिड परचेज है. लेकिन अभी क्या हुआ, अकाउंटेंट और परचेज मैनेजर दोनों मिल गए. तो अभी हमने क्या पढ़ा था, नेचर ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, वो वाला फ्रेज आएगा. इट इज एन एग्जांपल ऑफ द फेलियर ऑफ इंटरनल कंट्रोल ऑफ द फर्म. द इंटरनल कंट्रोल हैज नॉट ऑपरेटेड ड्यू टू collision बिटवीन एम्प्लॉइज, which is a limitation of internal control itself. The auditor has relied upon internal control. It is very nature of financial reporting that the management is responsible for devising suitable internal control. This is an inherent limitations of an audit. So nature of financial reporting वाला पैराग्राफ आएगा जहाँ पे management is responsible for the preparation and design of the control. ठीक है, डिजाइन एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द कंट्रोल. अभी मैंने उसके कंट्रोल के ऊपर रिलाय किया, मैंने अपना काम परफॉर्म किया, बट इट वाज overridden by collision. It is an example of the failure of internal controls of the firm. The internal control is not operated due to collision between the employees, which is a limitation of internal control itself. The auditor has relied upon internal control. It is very nature of financial reporting that the management is responsible for devising suitable control. This is an inherent limitation of an audit. This is an inherent limitation of an audit. तो आज की क्लास में बस हम इतना ही कवर करते हैं till inherent limitation of audit. Next class we will cover the remaining concepts. Thank you guys, thank you for the session, and do let me know if you want to subscribe to these classes. So just call me at the details which has been mentioned in the YouTube description, and I will share with you the link for the remaining classes so that you can enjoy. And I think I will be uploading the entire chapter 1 in YouTube, and thereafter it will be paid classes based on the details mentioned in the YouTube description. So you can, if you want to enroll for this batch, you can basically just give a call at this number and basically, yeah, you can enroll for this batch. Thank you guys. Thanks a lot. Bye. Have a good day.